Surveynya ঢুকাইছে রে ভাই এটা টানতে একদম ধরে এটা টানো পিছে বলা ওইটা স্থির অবস্থা দিকে সাইড করে রাখেন একটি মানে লাস্টে চাউলের নিচে সব আমরা আছে হবে আরো 28 ব্যাগ আছে পরিচালক সমিতির ধর্মনগর কাঞ্চনপুর পানিসাগর কৈলাসহরের দায়িত্বে আছে। এখানে দেখা যায় যে আমরা গন্ডু কি ব্লকের নাম চণ্ডীপুর স্টোর কিপারে অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার পর এখানে স্টোরে কাজ চলার নামে কিছু কিছু যারা বামপন্থী মনোভাবের যারা কর্মচারী, সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু কর্মচারীর মধ্যে মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে না, এই সমস্ত কিছু স্টোরের দুর্নীতি কারক যারা কুচক্রর মানুষ এখানে আইয়া কাজ করার নামে এই যে এখানে দেখা যায় স্টোর কিপার মারা যাওয়ার পরে হ্যান্ডিং ওভার টেকিং ওভারের কোনো প্রশ্ন হয় না। এই যে চিনিটা স্টোর কিপারে থাকাকালীন অবস্থায় চিনির বস্তার উপরে চাউল দিয়ে ঢাকিয়ে রাখা হয়েছিল। এটা কুচক্র ধর্মনগরের ক্যারিং কন্ট্রাক্টর বিমলকান্তি দাস, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মাফিয়া এবং এখানের যারা ক্যারিং কন্ট্রাক্টরের সাব কন্ট্রাক্টর কিনা হ্যাঁ গোপাল শব্দকর ওই মাফিয়ার চেলা, ওনাদের চক্রান্তে এখানে বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য দপ্তরের জনগণের চিনি এটা কেলেঙ্কারি করিয়া গোপাল শব্দকরের বাড়িতে এখানে গোপন করা হয়। এখানে অত্র এলাকাবাসী এবং অত্র এলাকার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তারা এটা সন্ধান পাইয়া এটার পিছা করে দেখা যায় এখানে 22 বস্তা না 22 বস্তা চিনি এখানে আটক করা হয়। সাথে সাথে কৈলাসহরের খাদ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার পর খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর নয়ন দাস এবং খাদ্য অধিকর্তা এখানের আছে পরিমল মজুমদার, ওনারা স্পটে আছে। দেখার পর এই চিনিটা যে কোনোভাবে এখান থেকে সরানির পরিকল্পনা করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু এখানে অত্র এলাকার জনগণ, সচেতন জনগণ এটারে আটক করিয়া রাখে এবং প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে এখানে টিএসআর এবং পুলিশের আটকে আছে। অক্ষণ আমরা দাবি জানাই এখানের যে বর্তমান স্টোরের দায়িত্বে যে ইন্সপেক্টর ওনাকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং গোপাল মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং এখানের যে গোপাল শব্দকরকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং এখানের মূল চক্রের মাফিয়া চক্র হইল ধর্মনগরের বিমল কৃষ্ণ দাস, ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হোক। সাথে সাথে ওনাদের টেন্ডার ক্যান্সেল করিয়া এখানে নবনির্বাচিত একজন কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করার দাবি আমি রাখি ত্রিপুরা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে এবং এটার সুবিচার চাই এবং খাদ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং মাননীয় জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ চাই। বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যাটা নয় গোডাউন গমের मैं मनीष बोल रहा हूँ। अच्छा पूर्ति चेयरमैन मैडम भी यहाँ पे आए हुए थे। ₹25 का सर इधर हम लोग को ₹15 मिल रहा है, कोई जगह में ₹10, वो जगह हमको ₹5 मिल रहा है। किस चीज़ का वो हम लोग को जो गडाउन से कैरिंग कंडक्टर देगा सर, इनको कैरिंग कंडक्टर का मैटर सब में हाँ ऐसा कर रहा है। इसलिए बोल रहे हैं सर कैरिंग कंडक्टर को तुरंत आप 4 मिला हुआ है सर। सतना को सामने सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल कुमार, एसडीएम कैलाश।
सर जैसे कि आपकी नज़र में आया है कि कल यहाँ पे स्कैम हुआ है, राइस शुगर स्कैम हुआ है, कल यहाँ पर एक शुगर का स्कैम हुआ है सर, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कैम तो नहीं कहेंगे, हो सकता है कि लीक हो गया हो, अभी हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि सर जनता कह रही है कि कल जो यहाँ पर शुगर जो आया है यहाँ पर करीब 22 सैक्स यहाँ पर आया है, तो वो सरकारी गोदाम से आया हुआ है, तो इसमें आपके ही ऑफिस के कर्मचारी जो भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, अभी ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे ऑफिस के कर्मचारी, जनता ऐसे कह रही है, क्योंकि ये इनका कहना है कि कैरिंग कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, चार क्योंकि अभी शुगर हमारे गोडाउन में ही नहीं आया है, तो ये हो सकता है कि गोडाउन से पहुंचने से पहले ही लीक हो गया हो। तो ये कहना कि मेरे ही ऑफिस के कर्मचारी से इन्वॉल्व हैं, ये अभी इस निष्कर्ष पे मैं नहीं पहुंच सकता। तो जैसे कि कल जनता जो कह रही थी कि यहाँ पर सैक जब उतारा जा रहा था तो आप ही के ऑफिस के कर्मचारी थे, सम मजूमदार, परिमल मजूमदार, वो भी यहाँ यहीं पर उपस्थित थे, तो जनता ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए थे वहाँ से। मेरा कहना ये है कि किसने देखा ये आपको भी पता है, मुझे भी नहीं पता, ना मैं था वहाँ पे ना आप थे, तो ये बिना जांच के मैं अपने कर्मचारियों पे गाड़ी लेके आया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी सही हो सकते हो, जो एलिगेशंस है वो सही हो सकती है, बट मेरे ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट थे या नहीं थे इसकी बिना इन्वेस्टिगेशन के मैं नहीं कह सकता कि वो थे, ठीक है। और जांच होगी इसकी, और जांच के बाद जो सामने आएगा वो मैं मतलब कावेरी जी से शेयर करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, आप रिप्रेजेंटेशन और आप लोगों से करूंगा, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना और एनिमिटी इंक्रीज करना एक दूसरे की अभी नहीं हो सकता है, आप मेरी बात समझिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम वैसे ही है। और ये ज़रूर अगर हमारी तरफ से कोई इसमें गलती हुई है, कहीं पे लीक हुआ है, तो हम एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये इंक्वायरी हम अगरतला से करेंगे, क्योंकि जब चीनी यहाँ हमारे गोडाउन में आए ही नहीं है, तो ये कहाँ से लीक हुई है इसका पता करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो सर कल आप ही के यहाँ पर एक फूड इंस्पेक्टर थे नयन दास, हमने कल उनसे बातें किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तो यही लग रहा है ये सैक जो शुगर का जो आया है ये सरकारी गोडाउन का ही है। हाँ हो सकता है मैं तो कह ही रहा हूँ सरकारी गोडाउन का है, बट कितना सब डिवीजन का फूड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसका पता करना है हमें। 4 मिला हुआ सर। इससे बात तो जरा सर वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि ऐसा प्रमाण आपको मिलता है कि हाँ आप ही के ऑफिस के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके विरुद्ध आप जरूर हाँ जरूर जो भी मैक्सिमम डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जो भी हमारे हाथ में होगा और इवन डायरेक्टर के हाथ में होगा वो लिया जाएगा। तो सर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो बाद में फ्रीज हो सकता है, या कुछ संपत्ति कितना कैसा आया है वो ये काम तो कोर्ट का है, इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता। सर पब्लिक कह रहा है कि करप्शन का केस आता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अकाउंट फ्रीज भी किया जाएगा। सर पब्लिक कह रहा है कि अभी भी गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, मतलब शुगर पड़ा हुआ है, तो आप बोल रहे थे कि शुगर नहीं है, शुगर गवर्नमेंट बंद कर दिया गया है, तो अभी भी गोडाउन में है ऐसा बोल रहा है पब्लिक। वो तो हम क्या जांच करेंगे, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिना जांच के हम कुछ नहीं बता सकते आपको ना कि ये शुगर कहाँ से आया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मेरा एम्प्लॉय ही इसको लेके आया तो ये इस पे निष्कर्ष पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि किसी की साजिश भी हो ये, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो बिना इन्वेस्टिगेशन के अपने आपके ऊपर या किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले मुझे एक इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। सर और एक ऐसा एलिगेशन आया है हमारे नज़र में कि यहाँ डलुगांव में जो FCI जो गोडाउन जो है वहाँ से करीब 7 ट्रक चावल जो है कुछ महीने पहले गायब हो गया था, तो इस बारे में आप कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हमारे पास जो आंकड़े हैं कि लोगों ने 90% चावल उठाया हुआ है अपने घरों में PDS शॉप्स में, तो अगर सभी लोग 90% चावल उठा रहे हैं तो 60 ट्रक गायब होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लोग उठा रहे हैं और वो तो अब आधार बेस्ड है, तो ऐसे 60 ट्रक गायब होना ये बड़ा वो है। हो सकता है कि 60 ट्रक गए हों, उनमें सामान है या नहीं है, क्योंकि ये कवर ट्रक होते हैं, इनके ऊपर कवर होता है क्योंकि बारिश का टाइम है, तो उसके अंदर सामान है या नहीं है इसकी प्रामाणिकता हमने ली नहीं है। और मुझे जितना उम्मीद है कि मेरे अगर मान लीजिए ऊपर से कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे PDS शॉप्स के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत जागरूक हैं, तो ऐसा होना कि 60 ट्रक गायब हो तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मेरी आप बात समझ रहे होंगे कि अगर लोग चावल उठा रहे हैं, 90% लोग चावल उठा रहे हैं, बेचने वाला उसको बेच रहा है, तो कहाँ 60 ट्रक कहाँ से जाएंगे? तो बाकी जो 10% रह जाता है, 10% तो हर जगह 10% मार्जिन वो नेक्स्ट स्टॉक में ऐड हो जाता है, वो तो अच्छा वो तो कैरी ओवर हो जाता है उसमें।
गाड़ी का किराया भी हम लोग को रह गया। तो लिख दीजिएगा कि साइन नहीं कर रहे हैं और नाम लिख दीजिएगा जो ठीक है, जिसका घर है, ये घर किसी का होगा ना, जोतना है ना ये, तो उसका नाम लिख दीजिएगा, नो वर्ड साइन, और दो जो है जो विटनेस है उनके साइन करा दीजिएगा। 2016-17 का है, पुराना जो है पूरा पिघल गया और इस पे नोटिस लगा दीजिएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज अंडर सर्विस, ठीक है। और कोई इसको करेगा तो 1 साल की सजा आपको खुलेगा, ये भी लिख देगा। 189 IPC के अंदर 1 साल की सजा है। अगर कोई ভাগ্যপুর ওয়ার্ড নম্বর 2 কৈলাসর তার বাড়ি একটু কই দিছি তার বাড়িতে গড় কই একটা আছে, কোন করে পাইছেন? ठीक है, आइएगा आप ऑफिस में ना। मैंने अभी मीटिंग करी थी पीडीएस शॉपकीपर की, उनके भी वही कंप्लेंट थी जो आपकी है। तो हम भी आगे आके मीटिंग करते हैं, हर महीने में मीटिंग करते हैं हम लोग। तो 10% जो होता है वो हम लोग मैनुअल में दे देते हैं, फॉर्म फिलअप करके दे देता है। तो ठीक है, ठीक है, एक बार हम आएंगे सर आपका, जरूर आप आइएगा। ठीक है। ठीक है मैडम। আচ্ছা, এখানে আজকে আপনি আসার উদ্দেশ্যটা একটু বলুন। যে কালকে যে ঘটনা হয়েছিল যে চিনির ব্যাপারে, তো এইগুলা নিয়ে আমি স্পটে দেখতেছি যে এই ঘটনাটা মানে মারাত্মক একটা ঘটনা হয়েছে। এগুলো এনকোয়ারির পরে আমি সব জানি না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।